ایسٹ جو ہے وہ فریز ہیں۔ الزام یہ ہے کہ وہ میں نے سارے جو ہے وہ ہیروئن کی سمگلنگ سے بنائے ہیں، اور دوسری طرف نیب جو ہے وہ یہ انکوائری کر رہا ہے کہ یہ میں نے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے بنائے ہیں۔ یعنی ایک ہی حکومت ہے، وفاقی حکومت ہے، اس کی دو ایجنسیاں ہیں، ایک طرف ANF ہے، ایک طرف نیب ہے، دونوں کا آپس میں جو ہے وہ اتفاق نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی ہیروئن سمگل ہوئی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اختیارات کا غلط استعمال جو ہے وہ ہوا ہے۔ میرے تمام اکاؤنٹس وہ فریز ہیں۔ میرا جو سیلری اکاؤنٹ ہے جس میں بطور MNA اس میں تنخواہ آتی ہے، وہ اکاؤنٹ بھی فریز ہے۔ میری پوری فیملی کے شناختی کارڈ جو ہیں وہ بلاک ہیں 1.5 سال سے۔ اس کے باوجود ہم اس ظلم کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس ظالم حکومت کے سامنے جو ہے وہ پورے قد سے کھڑے ہیں۔ تو کیا عمران نیازی تمہیں ابھی سمجھ نہیں آئی کہ ہم جھکنے والے نہیں ہیں؟ ہم تمہارے ظلم کا جو ہے وہ مقابلہ کریں گے اور تمہیں منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ یہ تم نے جو کل وہ اپنا گالی گلوچ برگیڈ اکٹھا کیا ہوا تھا، اور انہیں تم یہ کہہ رہے ہو کہ جی اپوزیشن کو ایکسپوز کرو۔ او بھئی اپوزیشن کا کیا ایکسپوز کرنا ہے تم نے؟ اپوزیشن کا کیا ایکسپوز کرنا ہے؟ اب تو تم خود ایکسپوز ہونے کے قابل ہو۔ جو 150 ارب روپے کی جس نے ڈکیٹی کی ہے چینی میں، وہ جا کے جو ہے وہ لندن بیٹھا ہے۔ کوئی ادویات میں جو ہے وہ اربوں روپے کما کے وہ ظفر مرزا وہ بھی بیرون ملک چلا گیا ہے۔ اور یہ کووڈ-19 کی جو یہ امداد چلی ہے اس میں ادویات کی پرچیز میں، یہ ماسک کی پرچیز میں، ہر چیز میں آپ ایک ایک چیز کو نکال لیں، 10 گنا قیمت کے اوپر جو ہے وہ چیزیں خریدی گئی ہیں۔ اربوں روپے کی دیہڑیاں لگی ہیں، اربوں روپے کی جو ہے وہ کرپشن ہوئی ہے، وہ اسے نظر نہیں آتی۔ اس کو جو ہے وہ ایکسپوز کرنے کا جو ہے وہ اسے کوئی خیال نہیں ہے۔ اپوزیشن کو جو ہے وہ کہتا ہے کہ ایکسپوز کیا جائے، اور اتنا لوٹ مار کا بازار گرم ہے۔ فیصل آباد میں ایک فیصل ایڈوکیٹ نامی نے 8 کروڑ روپے کا فراڈ کیا، اپنے ایک رشتہ دار کو اغوا کر کے اس سے اغوا برائے تاوان میں 8 کروڑ روپے وصول کیا۔ وہ اب گرفتار ہوا ہے۔ اس نے جو لسٹ بنائی ہے اس نے کہا ہے کہ میرے پاس تو 8 کروڑ میں سے 8 روپے بھی نہیں ہیں، یہ 50 لاکھ میں نے فلاں کو دی ہے، 1 کروڑ میں نے فلاں کو دی ہے، 50 لاکھ میں نے فلاں کو دی ہے۔ 5 پولیس افسران کی ٹیم کے سامنے اس نے بیان دیا ہے۔ وہ بیان کریں لائیں سامنے وہ بیان۔ اب اس بیان کو جو ہے وہ چھپایا جا رہا ہے۔ میں CCPO فیصل آباد اور RPO فیصل آباد کو یہ متنبہ کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو سنبھال کے رکھنا، اس بیان کو سنبھال کے رکھنا، اس کا یوم حساب آنا ہے۔ اور میں چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی کہوں گا کہ آپ اس ایک کیس کا، اس فیصل نامی ملزم کا جو ہے وہ بیان آپ بلا کے دیکھ لیں، اس کا 100 موٹو نوٹس لے لیں۔ آپ کو فیصل آباد میں جو لوٹ مار ہو رہی ہے، غریبوں کی جھونپڑیوں کو جو ہے وہ بلڈوز کیا جا رہا ہے، غریب لوگوں کو بے روزگار کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ کروڑوں روپے کی ڈکیٹیاں ہو رہی ہیں، اور جو ڈاکو اور جو فراڈیے جو ہے وہ عوام سے فراڈ کرتے ہیں، تاوان لیتے ہیں، ان سے آگے جو ہے وہ سرکاری لوگ بیٹھے ہیں تاوان لینے کے لیے، اور جب وہ ملزم پکڑے جاتے ہیں، بیان دیتے ہیں، تو پھر ان بیانوں کو جو ہے وہ کور دیا جاتا ہے، ان کو چھپایا جاتا ہے۔ تو یہ جو لوٹ مار کا بازار گرم ہے، یہ اس طرح سے نہیں رہے گا۔ یہ انشاءاللہ تعالی اب PDM نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ اس ظلم کے خلاف ہم انشاءاللہ تعالی کھڑے ہوں گے، عوام ساتھ دیں گے۔ عوام کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے، ہر آدمی جو ہے وہ لٹ رہا ہے، اور جو ملزم ہے وہ عابد جو ہے وہ موٹر وے کا ملزم، وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوا، اور اس کے متعلق بات کرنے پر میڈیا میں پابندی لگ گئی ہے۔ سوشل میڈیا میں جو ہے وہ اب وہ جوک ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں وہ PTI میں اس نے شمولیت اختیار کر لی ہے، اس لیے اب
मीडिया के ऊपर कहा कि इसका कोई नाम ना ले, इसके मतलब जो है वो कोई बात ना करे। आज मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। आज तो 3 सेकंड में हर चीज़ जो है वो हर जगह पे पहुंचती है। इस तरह की डकैतियाँ, इस तरह की लूट मार को छुपाना और अपने गाली गलोच ब्रिगेड को कहना कि लोगों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करो, लोगों के खिलाफ जो है वो बातें करो, और आला मनसब पे बैठे लोगों को, मियां नवाज शरीफ को एक जाली मुकदमे में, एक झूठे मुकदमे में जो है वो सज़ा जो हुई है, और जो सज़ा देने वाला जज कह रहा है कि ये मैंने अपने ज़मीर के ख़िलाफ़ फ़ैसला किया है, ये मुझसे जो है वो मुझे ब्लैकमेल करके सज़ा दिलाई गई है। वहाँ पे तो उन्हें जो है वो निज़ाम का जो है वो मजाक उड़ता नज़र आता है। लेकिन जब सरीना ईसा वहीं पे इस्लामाबाद में वहाँ पे FBR के में धक्के खाती फिरती है, तो वो उनको नज़र नहीं आती कि उसका मजाक जो है वो कैसे उड़ रहा है। लोग उठाए जाते हैं और उनके जो घर वाले हैं वो 5 दिन 6 दिन जो है वो धक्के खाते हैं, वो रोते हैं, वो सड़कों पे रुलते हैं, और उसके बाद वो बंदा आता है, वो कहता है मैं तो शुमाली इलाका जात की सैर करने के लिए गया था। ये निज़ाम का मजाक उड़ता जो है आला मनसब पे बैठे लोगों को जो है वो नज़र नहीं आता। मियां नवाज शरीफ जो है वो अगर अपने इलाज के लिए बैठा है, बाहर गया है, बाहर या उसे भेजा गया है, वो मजाक उड़ाता नज़र आता है। सरीना ईसा का मजाक उड़ता नज़र नहीं आता। शुमाली इलाका जात की सैर जो है उसका जो है वो मजाक उड़ता नज़र नहीं आता। मियां शहबाज शरीफ जिसने खिदमत की है सूबे की, मैं दावे से कहता हूं कि 1 रुपए की करप्शन जो है उसके ख़िलाफ़ जो है ये साबित करें। उसके ख़ानदान के कारोबार की ट्रांजैक्शंस को जो है वो इधर उधर घुमा के जो है उसके ऊपर जो है वो केस बनाया जाता है, और रेफरेंस दायर हो जाता है अदालत में, वो अदालत में हाज़िर हो जाता है। इसके बावजूद सिर्फ जो है उसे जो है विक्टिमाइज़ करने के लिए जो है उसे गिरफ़्तार किया जाता है। तो ये जो तज़ादात हैं ये ज़्यादा देर चलने वाले नहीं हैं। ये ज़्यादा देर जो है ये जुल्म जो है वो कायम नहीं रह सकता। इंशाअल्लाह ताला वक्त आ गया है कि हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जो है वो उठ खड़ा हो और इस जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ जो है वो अपना एहतजाज जो है, अपनी सदा जो है वो बुलंद करें। इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के अवाम जो है वो कामयाब होंगे और ये जालिम हुक्मरान जो है वो अपने अंजाम को पहुँचेंगे। मौजूदा सियासी गोलाबारी है, दोनों तरफ से बयानात का सख्त सिलसिला जो है वो जारी है। आप ये नहीं समझते कि आपकी लड़ाई किसी और तरफ कन्वर्ट हो गई है और मौजूदा हुकूमत मज़ीद मजबूत हो गई है? मौजूदा हुकूमत जो है ये ना कभी मजबूत थी, ये कठपुतली हुकूमत है, ना ये कभी मजबूत हो सकती है। अलबत्ता हुकूमत की ये कोशिश है, इमरान खान साहब ने अपने गाली गलोच ब्रिगेड को कहा है कि आप अदारों का तहफ़्फ़ुज़ करें। यानी जब ये लोग अदारों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे तो लाजमी बात है कि फिर अदारों के मुतल्लिक़ जो है वो बात होगी। ये चाहते ये हैं कि अपोजिशन और अदारे आपस में दस्तों गिरेबां हों और ये बीच में जो है ये चूरी खाते रहें। इंशाअल्लाह ताला सबसे पहले जो है इनकी पकड़ होगी, ये मियाँ बिट्ठू जो बैठा है, और उसके बाद जो है वो बात होगी। अदारों के ख़िलाफ़ कोई अपोजिशन का, ना कोई अपोजिशन का बयानिया है, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बयानिया है। मियाँ नवाज शरीफ ने अपनी मुसल्लह अफवाज को, अपनी अफवाज के शुहदा को, अपनी अफवाज के जवानों को, अफसरों को जो वतन की हिफाजत के लिए सरबकफ हैं, उनको 3 मरतबा अपनी स्पीच में जब वो हाथ उठा के सलाम किया, सलूट पेश किया और उसकी तकरीर के ऊपर पाबंदी लगा दी है। वही बातें उसने 20 तारीख को की, कोई पाबंदी नहीं लगी, बल्कि इजाज़त दी वज़ीर आज़म ने। वही बातें उसने जो है वो 1 दिन पहले की, कोई पाबंदी नहीं लगी। लेकिन जिस दिन उसने अपने फ़ौजी अफसरों और जवानों को सलूट पेश किया, उस दिन पाबंदी लग गई, ताकि जो है वो ये पैगाम जो है वो ना पहुँचे। हमारा ये पैगाम है, किसी अदारे के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है, कोई अदारा जो है वो इस मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है। सब लोग मुहिब्बे वतन हैं,
सियासतदान मुहिब वतन है, अपोजिशन मुहिब वतन है, और ये जो अपोजिशन के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इंडिया का जो है वो बात की जा रही है कि जी इंडिया के साथ तल्लुकात हैं, इंडिया खुश हो रहा है। वो भाई जो तुम्हारे 23 अकाउंट है वो लाओ ना सामने, पता चल जाएगा इंडिया से पैसे कौन लेता रहा है, पता चल जाएगा इसराइल से पैसे कौन लेता रहा है। सारी बात जो है वो सामने आ जाएगी। इलेक्शन कमीशन में वो अकाउंट्स पड़े हैं, उनका ऑडिट करवाओ, क्यों नहीं करवाते वो? लेकिन मियां साहब ने ये कहा है कि जो इमरान खान नियाजी को लाए हैं हमारी जंग उनके साथ है, इमरान खान के साथ ही आप। मामला ये है कि जो लाए हैं ना, गलती हो गई है ना, गलती वापस लें। हमारी लड़ाई नहीं है किसी से। हम तो ये कहते हैं कि इस मुल्क में जो होता रहा है, कन्वेंशन लीग कैसे बनी, IJI कैसे बनी, जनरल मुशर्रफ ने क्या किया, ज़ियाउल हक ने क्या किया, ये सारा हमारी तारीख का हिस्सा है। लेकिन हम कहते हैं कि जो हो चुका सो हो चुका, अब आओ आगे चलें, बैठे डायलॉग करें। लेकिन बात ये है कि मसाहलत की पॉलिसी भी आ गई है। मामला ये है कि मसालहत की पॉलिसी से ये मुराद नहीं है कि हम जो है वो वोट की इज़्ज़त को जो है वो कंप्रोमाइज़ करें। वोट को इज़्ज़त दो, वोट के फ़ैसले को तस्लीम करो, वोट को इज़्ज़त दो, वोट के फ़ैसले को तस्लीम करो। इस मुल्क में फ्री फेयर इलेक्शन होने चाहिए। अब जो हो चुका है पहले वो तो वापस नहीं आ सकता। हम कहते हैं कि आएँ, इस मुल्क के 22 करोड़ आवाम को फ़ैसला करने दें, इस मुल्क में फ्री और फेयर इलेक्शन का मौका दें, इस मुल्क में फ्री और फेयर एहतसाब जो है वो होना चाहिए। इस मुल्क में जो है वो किसी के ख़िलाफ़ झूठा मुकदमा दायर नहीं होना चाहिए। अब अगर इससे पहले दायर हुए हैं तो उनको ख़त्म होना चाहिए ना। अगर इससे पहले अगर किसी से भी कोई अगर गलत हुआ है तो उसको जो है वो ख़त्म होना चाहिए, और हमारा यही मुतालबा है। इसके अलावा हमारा ये मुतालबा नहीं है कि हम जो है वो किसी के ख़िलाफ़ जो है वो आज अगर इमरान खान जो है वो स्टेप डाउन करे, कठपुतली हुकूमत जो है वो ख़त्म करे, आए फ्री एंड फेयर इलेक्शन में जो है वो हिस्सा ले, जो कामयाब होगा हम उसको जो है वो तस्लीम करेंगे। आप ये समझते हैं कि ऑपोजिशन से कहीं ना कहीं गलती हुई है? जो आवाम के इशू है, महंगाई इतना बड़ा जो है, डबल कीमतें हो चुकी हैं, आप लोगों ने गलती की है, ना आपने एहतजाज किया ना जलसे किए, इसको आप तस्लीम करते हैं? ये प्रोपेगेंडा है गाली गलोच ब्रिगेड की तरफ से। अपोजिशन ने हमेशा महंगाई की बात की है, अपोजिशन ने हमेशा आवाम की बात की है, अपोजिशन ने हमेशा जो है वो जो नाजायज़ टैक्सेस लगाए गए हैं उनकी बात की है। अपोजिशन ने हमेशा ताजरों के मुतालबों को जो है वो इंडोर्स किया है। मामला ये है कि अब जब अपोजिशन ने हतमी तौर पे ये फ़ैसला किया है कि वो आवाम के लिए, इस मुल्क के मसाइल के लिए जो है वो खड़े हों और एहतजाज करें, उसमें जो 26 नकाती जो रेजोल्यूशन PDM ने जो है वो ऑप्ट किया है, उसको आप सारे को पढ़ के देख लें। उसमें आवाम के मसाइल के अलावा कोई और चीज़ नहीं। आवाम के मसाइल के ऊपर ही जो है वो हमने हर चीज़ की बुनियाद रखी है। और ये जो हम फ्री और फेयर इलेक्शन चाहते हैं, ये हम जो फेयर एहतसाब चाहते हैं, ये जो हम गलत मुकदमात के अंदराज की जो है वो नफ़ी चाहते हैं, तो ये किस लिए चाहते हैं? अगर ये हो जाए सारा, ये अगर इंसाफ कायम हो जाए तो सबसे पहला कदम जो होगा वो आवाम की खुशहाली होगी। पाकिस्तान जो है वो बेहतरी की तरफ आगे बढ़ेगा और पाकिस्तान जो है वो कामयाबी की तरफ जो है वो आगे बढ़ेगा। इस तरह की नाइंसाफ़ी से अब एक वज़ीर आज़म जो है वो वज़ीर आज़म हाउस में बैठ के एंटी नारकोटिक्स के जर्नैल को साथ बैठा के, फरदौस आशिक अवान को साथ बैठा के, शहरयार अफरीदी को साथ बैठा के उनकी ट्रेनिंग कर रहा है कि राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ जो जाली केस है उसको आपने किस तरह से जाके डिफेंड करना है। आप मुझे बताएं कि वो मुल्क जो है वो हुकूमत जो है वो फिर चल सकती है, वहाँ पे फिर इंसाफ का नाम जो है वो लिया जा सकता है। ये चीज़ें जो है अगर ये चीज़ें ख़त्म होगी तो उसके बेनिफिशरी जो है वो मुल्क के अवाम हो। अब आप मुझे ये बताएं, पंजाब हुकूमत की आपने बात की है, वो किसको नहीं पता कि 5 करोड़ रुपया तो लिया है इसके बुज़ार के जो है वो भाई ने,
वो जो इसका कज़न जो है वो बाहर इसका फ्रंट मैन के तौर पे बैठा है, और गिरफ्तार कर लिया है वो डीजी एक्साइज को, क्या नाम है उसका, अशरफ गोंदल को। यानी अब मामला ये है कि ये कहाँ का इंसाफ है? ये नैब जो है ये क्या कर रही है? नैब जो है, नैब को बस यही काम रह गया है। मेरे वालिद ने 1963 में मकान बनाया था, अब नैब गई हुई थी 4 दिन पहले कि उस मकान की कंस्ट्रक्शन की वैल्यू निकालनी है कि मैंने अपनी पैदाइश से पहले या कोई 2-3 साल की उम्र में मैंने ये मकान किस तरह से बनाया है। यानी ये नैब कर रहा है, यानी ये नैब की जो है वो तफ्तीश है, ये नैब की इंक्वायरी है। 5 करोड़ रुपए लिया है वज़ीर आला के भाई ने और गिरफ्तार कर लिया डीजी एक्साइज को। सिर्फ वज़ीर आज़म ने एक दफ़ा कहा कि ये क्या मजाक है, बात ख़त्म हो गई। तो फिर इस तरह से अगर ये मामला चलेंगे तो फिर ये किसी इनकलाब की तरफ बात जाएगी। ये फिर अगर जो है वो इंसाफ नहीं होगा तो फिर ये नहीं हो सकता कि ये जुल्म जो है वो इसी तरह से कायम रहे। बात ये है कि ये पिंडी का शैतान जो है ये नून में से शीन और शीन में से नून निकालते इसको। मैंने इस आदमी को ख़ुद देखा है कि मियाँ नवाज शरीफ के पीछे 2008 में कुत्ते की तरह ये दुम हलाता फिरता था कि मुझे शामिल कर लो। और मरहूम जो है वो अपना नवाब वक्त के मजीद निज़ामी साहब, वो इसके जो है वो सिफारशी थे। फ़र्रख साहब उनके एक रिपोर्टर हैं और वो इस वक्त हयात हैं, अल्लाह ताला उनको जो है वो ज़िंदगी दे। वो इस बात के गवाह हैं, उनसे आप पूछें कि ये उस वक्त क्या कर रहा था। आप बता दें कि मरियम साहिबा ने जो कहा था कि हमारा बयानिया, मेरा बयानिया और मियां नवाज शरीफ का बयानिया उठाने की हर किसी को बात है, तो आप नून लीग ने उनका बयानिया उठाने की तैयारी कर ली है? जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हर फर्द ने, हर वोटर ने, हर सपोर्टर ने जो है मियाँ नवाज शरीफ के बयानिए को तस्लीम किया है, उसे ऑप्ट किया है, उसको साथ लेके चलने का जो है वो अहद किया है। अब देखिए, बात ये है कि एक आदमी जो है, हर आदमी की एक लिमिट है। एक आदमी जो है वो एक हद तक जो है वो जा सकता है, एक आदमी जो है वो उससे आगे जा सकता है। हर किसी में, जिसमें हिम्मत नारा लगाने की है, जिसमें हिम्मत जो है वो खामोश सपोर्ट की है, जिसमें हिम्मत जो है वो आगे बढ़ के जदोजहद करने की है, जिसमें जितनी हिम्मत है उसके मुताबिक जो है वो इसमें अपना हिस्सा ले। बाकी दिल से जो है वो सब मुतफिक हैं और सब जो है वो दुआगो हैं कि अल्लाह ताला जो है वो कामयाब करे। बहुत शुक्रिया।